शोलिना, वेलकम टू लिमिटलेस ब्रेन, कॉमर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन, जहां पे 11-12 हर कॉमर्स का सब्जेक्ट मिलेगा बिल्कुल फ्री। Let's get started with the second part of the chapter, staffing. So in this part we are going to talk about the different external sources. Last day हम लोग external sources क्या है बताए थे ना। Next part we'll talk about the external sources, importance, selection, training and development. With that we will close off the chapter today, staffing. So let's get started. Now when we talk about external sources, last day हम लोग क्या बताए थे, ढूंढ रहे हम लोग बाहर जाके किसी को कि कौन है मेरा ये परफेक्ट बंदा जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफेक्ट है, राइट? So I'm going outside my organization, stepping outside my organization to search for that right person, the right man or the right woman for my candidate. So now there are different sources of external recruitment. Internal recruitment में दो sources पढ़े थे, transfer, promotion, right? एक्सटर्नल सोर्सेस में बहुत ज्यादा ऑप्शंस है मेरे पास। जैसे नंबर 1 एडवर्टाइजमेंट, मोस्ट कॉमन सोर्स। आज लिंक्डइन में जाओ, naukri.com में जाओ, हर एक कंपनी वहीं पे अपना जॉब पोस्टिंग कर रहा है। क्या बोल रहा है? ये मेरा जॉब है, ये मेरा पोजीशन है, ये मैं तुम्हारा सैलरी है, अब अप्लाई करो भैया आके। दैट इज व्हाट एडवर्टाइजमेंट इज, नंबर 1। नंबर 2 इज कैजुअल कॉलर, क्रिंग क्रिंग फोन बजता है, भैया आपको नौकरी चाहिए क्या, ये मेरा पोजीशन है। ये फोन आता है ना, अभी नहीं आता होगा, 11-12 में हो ना, इसीलिए बाद में फोन आएगा। मेरे को फोन आते आते पागल हो जाते, ये नौकरी चाहिए, वो नौकरी चाहिए। Casual callers, some people will call you, will track all your resources, will call you whether you are interested for the particular position or not. The next that we have is direct recruitment. What do we mean by direct recruitment? This is most common for all the big shot companies. What happens? You go to PwC website, you go to TCS website, you go to Wipro's website, you get to see a notice is flashing to the right or the left side where we get to apply for the job directly to the specific website. That is called direct recruitment. In direct recruitment, we need to click on that link, the entire form we are going to fill up and we apply for the job. कंपनी के पास डायरेक्टली आपका सीवी चले जा रहा है, आपका सारा इंफॉर्मेशन चले जा रहा है। कंपनी विल सेव योर सीवी एंड इट्स इजी फॉर कंपनी टू शॉर्टलिस्ट। Number 4 that we have is employee exchange. Here both the government and the non-government, the collar workers, the non-collar workers, everyone can put their names in, okay? Can sign in their names, can give their names and they do what? They become the part of the organization. Now the employee exchange people will search for it. कौन सर्च करेंगे कि मेरे को भैया तुम हेल्प कर दो ना थोड़ा जॉब मिलने में। वो भैया जो हेल्प करेंगे मेरे को जॉब मिलने में, उसी को हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉय एक्सचेंज। दिस वाज प्रीवियसली वेरी कॉमन, but now we have become very self efficient, so we can apply directly through LinkedIn, Facebook, anywhere, everywhere. But previously it used to be employee exchange, which was situated or developed by the government. With the help of them we can find out the most appropriate job. The next that we have is campus recruitment. This is extremely common. अपने भैया को पूछो, अपने बहन को पूछो, कोई भी BBA, MBA, MCOM कुछ भी कर रहा है, कैंपस रिक्रूटमेंट होगा ही होगा। क्या होता है कैंपस रिक्रूटमेंट में? All the good companies or the startups will come down to your college and will pick you up. ऐसे उठा के नहीं लेके जाएंगे, will pick you up based on your CV. If your CV matches their job qualification, then you are selected for the job. That is what we mean by campus recruitment. The next we come to placement agencies. क्या है ये placement agency? और management consultant. These are the people who are like a helping hand to you. Just like for example, you are telling someone please मेरे लिए एक job देख दो ना, तो you tell this management consultant people or you act on their behalf, you register in their company so that they will help you to reach out to the jobs. कैसे?
सपोजिटली कोई एक्स एक कंपनी है, वो कंपनी में हम एक नॉर्मल एम्प्लॉय जो बेचारा है, जो ढूंढ रहा है कंपनी के लिए जॉब्स, सो हम गए ये एक्स वाला कंपनी के पास कि भैया मेरे को जॉब दे दो ना। ये लोग बोले ठीक है अपना सीवी दो, हम अपना सीवी जमा कर लिए। दिस कंपनी एक्स इज गोइंग टू फाइंड आउट द प्रोस्पेक्टिव जॉब फॉर मी, सो दैट इज व्हेन वी मीन बाय मैनेजमेंट कंसल्टेंट। आफ्टर दैट वी हैव रेफरिंग एम्प्लॉय रेफरल्स, ये भी बहुत कॉमन है। सपोजिटली कोई मेरा इन हाउस एम्प्लॉयज है, उसको बोल रहे अगर तुम्हारा कोई एमबीए वाला फ्रेंड है उसको लाओ ना ऑर्गेनाइजेशन पे, अगर तुम्हारा कोई है चाचा का बेटा, कोई मामा का बेटा, उसको लाओ ना अपने ऑर्गेनाइजेशन पे। सो दिस इज एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट बट थ्रू एम्प्लॉय रेफरल्स। When this comes in the organization, these are little bit biasness of course is there, क्योंकि तुम्हारा मामा का बेटा, चाचा का बेटा आ रहा है तो biasness है ही, but at the same time you get to know about the employees in the best possible manner. With this we come to the end of the different kind of sources of external recruitment. Now ये external sources जो है भैया ये बहुत अच्छा है, क्यों? External sources का merits, we will do the merits of external sources. First of all, we can find the fresh pool of candidates without any biasness. Next thing that we have, if there is no biasness, we get to experience the fresh talents in our organization without any biasness. कोई भी campus recruitment में जाओ, कहीं पे भी जाओ, you get to experience the fresh candidates, the fresh talents. Qualified personnel, they are directly applying for your jobs without any kind of a recommendation. यहाँ पे घर का मुर्गी था दाल बराबर, वो क्वालिफाई करे कि ना करे तुम उसको वर्क दे रहे हो, बट यहाँ पे qualified background people are coming and applying for your jobs. The next that we have competitive spirit. Competitive spirit मतलब जो तुम्हारा internal employees already है उन लोगों को थोड़ा डर लग सकता है, मेरे को ठीक से काम करना पड़ेगा, कोई आके मेरे को जज कर दिया तो। सो यू गेट टू सी द absolute result in the best possible manner when you go for external sources. The next that you have wider choice. यहाँ पे एम्प्लॉय, वहाँ पे एम्प्लॉय, वहाँ पे एम्प्लॉय, 10,000 एम्प्लॉय मिल रहा है, तुमको चाहिए बस 4। Wider resources of options. So these are the merits of external sources of recruitment. अब हर चीज का अच्छा है तो बुरा होगा ही ना। Limitations of external sources. पैसा बहुत खर्चा होता है, costly, highly time consuming and highly costly. ढूंढ रहे परफेक्ट किसी को ढूंढने गए हैं, ऐसे ऐसे तो नहीं मिलेगा भैया, पैसा भी देना पड़ेगा, टाइम भी देना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, परफेक्ट एम्प्लॉय ना चाहिए। Also at the same time it is an extremely lengthy process. Okay, why is it a lengthy process? जा रहे कैंपस में, ढूंढ रहे किसी को, फिर सिलेक्ट कर रहे हैं, या तो फिर सबका एप्लीकेशंस ले रहे हैं फिर सिलेक्ट कर रहे हैं। दैट इज इंटायरली अ टाइम कंज्यूमिंग एंड अ कॉस्टली प्रोसेस। दीज आर द limitations of external sources of recruitment. The next that we come to selection. Recruitment खत्म, ढूंढ लिए, यूं ही चला चला खत्म हो गया, अब सिलेक्ट करना है, आओ पधारो। So selection is all about when we are choosing the best of the candidate from a huge bulk. Supposedly you have a lot of options. आज बिरयानी खाना है, आज नूडल्स खाना है, आज मंगोलियन राइस खाना है, कल पिज्ज़ा खाना है, कौन सा चूज करेंगे? So choosing कि आज बिरयानी खाना है, choosing कि आज मंगोलियन राइस ही खाना है, that is what selection is. When we have a lot of option, we get to select something, whether that's good or bad for my organization. That is what we come to selection. The next that we come to process of selection. So ये process of selection में first चीज क्या है? Screening test. What do we screen? We screen the qualified and unqualified people. चाहिए था मेरे को अकाउंटेंट, डॉक्टर्स भी अप्लाई कर दिए, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो स्क्रीनिंग करना है, कौन मेरा क्वालिफाइड है,
सारा क्वालिफाइड को एक बास्केट पे रखो, सारा जो अनक्वालिफाइड है उसको फोल्ड करके फेंक दो। दैट इज द फर्स्ट स्टेप नोन एज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। तो टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट में चलते हैं। फर्स्ट क्या करेंगे, इंटेलिजेंस टेस्ट, दिमाग की बत्ती को जलाना है। अब आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन पे जाना है, आप विप्रो में काम करना चाहते हो, टीसीएस में काम करना चाहते हो, चले काम करने, ऐसे तो नहीं होगा। इंटेलिजेंस टेस्ट मतलब हम लोग जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पे जा रहे हैं उसका बेसिक क्वालिफाइड टेस्ट देना पड़ता है। वहां पे लॉजिकल रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा, मैथ्स होगा, आपका बुद्धि का टेस्ट करेंगे वो लोग, वो है इंटेलिजेंस टेस्ट। Number 2 test that we have is the aptitude test. Aptitude test मतलब आपको कोई चीज का न्यू स्किल्स, न्यू आइडियाज का इंटरेस्ट है लर्निंग का या नहीं है, वो क्वेश्चंस वो लोग पूछेंगे। सपोजिटली आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, अब एक ही सॉफ्टवेयर को घिसा पिटा आप लोग वही सॉफ्टवेयर को चला रहे हो, नहीं चलेगा। अपडेटिंग, वेदर यू आर इंटरेस्टेड टू अपग्रेड योरसेल्फ विथ न्यू स्किल्स और नॉट। द नेक्स्ट दैट वी हैव इज द पर्सनालिटी टेस्ट, अपना इमोशनल बैलेंस, पर्सनल बैलेंस। सो वो लोग ऐसे क्वेश्चंस देते हैं आप लोगों को कि सपोजिटली रेड आपका फेवरेट कलर है, येलो आपका फेवरेट कलर है, कोई सिचुएशन दे देते हैं आपको कि वो सिचुएशन पे एक एम्प्लॉयज कैसे रिएक्ट करेंगे। सपोजिटली हम लोग एक सिचुएशन दे दिया आपको, 2 एम्प्लॉयज मेरे ऑर्गेनाइजेशन पे झमेला कर रहे हैं, आप एज ए एम्प्लॉयर क्या करोगे? एक ऑप्शन है आप ताली बजाओगे, वाह 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 ये लोग झगड़ा कर रहे हैं। दूसरा क्या है, आप कोई अपना स्किल्स लगाओगे, नहीं इन दोनों लोगों को झगड़ा नहीं करने देना है, अगर ये लोग झगड़ा करेंगे मेरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम है। दैट इज पर्सनालिटी टेस्ट, हाउ यू यूज योर स्किल्स, योर इमोशंस टू अपग्रेड और टू बी इन द ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर दिस द नेक्स्ट स्लाइड दैट वी हैव इज द एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब आपका टेस्टिंग प्रोसेस हो गया, उसमें आप लोग पास हो गए, वाह भाई वाह, अब खुश हो गए, आप लोग के पास मेल आ गया कि नाउ यू आर क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस। नाउ व्हेन यू स्टेप इन द इंटरव्यू प्रोसेस यू हैव टू बिलीव दैट यू आर एलिजिबल फॉर दैट प्रोसेस। तो एम्प्लॉय इंटरव्यू है थर्ड स्टेप ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। क्या करते हैं हम लोग एम्प्लॉय इंटरव्यू में? एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयर क्वेश्चन पूछते हैं, आइदर स्ट्रेस इंटरव्यू, आप लोग रोडीज देखते थे क्या, रघु कैसे क्वेश्चन पूछता था, वो है स्ट्रेस इंटरव्यू, आप लोग को एकदम पागल कर देने टाइप। और कौन सा इंटरव्यू हो सकता है? नॉर्मल in out questions to make you comfortable, they will ask you about your background, everything. So the interview is a process where they ask or know about, to try to know more about you, about your personal skills, about your development, about your other activities. That is what the third step is. The next and the fourth step that we have is a reference check. रेफरेंस चेक मतलब आप लोग के बैकग्राउंड चेक होता है, कौन से एम्प्लॉयर ऑफिस में, कौन से पहले ऑर्गेनाइजेशन पे आप लोग काम कर चुके हो। सपोजिटली अगर किसी का भी बैकग्राउंड नहीं चेक करके हम उसको आ गए ऑर्गेनाइजेशन पे लेके आ गए, तो क्या हो सकता है, आइदर उसका कोई बैड रिव्यूज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। सो रेफरेंस चेकिंग मतलब कि प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से या तो फिर प्रीवियस ऑफिस से या तो फिर प्रीवियस एम्प्लॉय से, व्हेन वी आर चेकिंग वेदर द पर्सन हैज गॉट अ करेक्ट frame of mind or is it eligible for the organization or not, that is what we mean by reference check. The next, the fifth step that we have is the selection test. अभी employer बैठ के सोचेगा इसको लेना है उसको लेना है। सपोजिटली सब कोई दे रहा है इंटरव्यू, ओके, बहुत कोई दे रहा है इंटरव्यू। सपोजिटली फिल्म का बात मान लीजिए, कोई भी मूवी में ये जवानी है दीवानी में रणबीर तो इतना अच्छा एक्टिंग किया, मे बी रणबीर के जगह पे शाहरुख खान वो गए थे, शाहरुख खान बन सकता था क्या? नहीं ना। सिलेक्शन टेस्ट में
हम शाहरुख खान को सिलेक्ट करेंगे कि रणबीर कपूर को सिलेक्ट करेंगे, किसको सिलेक्ट करेंगे? दैट इज व्हाट द एम्प्लॉयर सिट एंड डिसाइड who is the perfect one or the perfect candidate for my organization. The sixth step that we have is the medical examination. It is absolutely necessary for all the organization to do a background check, whether you have any kind of a medical history, whether why do the companies want to know your medical history on the very first place? Supposedly आज आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, तो क्या करोगे? आप बहुत ज्यादा एब्सेंट हो गए ऑर्गेनाइजेशन पे, क्या करना है ऑर्गेनाइजेशन को? ऑर्गेनाइजेशन को आप लोगों का मेडिकल स्पॉन्सर बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना है, ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं करना चाहता है। इसीलिए आई डू अ बैकग्राउंड चेक वेदर माई एम्प्लॉइज आर एक्चुअली फिट एंड फाइन और नॉट टू वर्क इन माई ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज व्हेन वी डू फॉर medical test. After medical test, the next that we have is a job offer. अब सब चेक में टिक 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 टिक, वाह रे वाह, सिलेक्ट हो गए आप, जॉब ऑफर लेटर आएगा ना आप लोगों के पास। अब आएगा आपके पास ईमेल, यू आर सिलेक्टेड फॉर द जॉब। जॉब ऑफर इज व्हेन the employer finds you suitable absolutely for the job, then they give you a offer letter. That is what we mean by job offer. After job offer, the last step that we have is the contract with the employees. Like, अब employees बहुत सारे जगह पे इंटरव्यू दिए थे, जॉब ऑफर भी उसको बहुत सारा जगह से मिला है। अब वो है बॉस, उसको सिलेक्ट करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, कहाँ जाना है। So contract of the employees talks about which job I am going to choose, whether my job timing, whether my job salary, whether my job offer or my interest is matching with the job or not. So if both the employer matches, the employee matches, rishta pakka. Employees are welcomed in the organization. With that we come to the end of the selection process. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए हमेशा हम लोग जैसे पहले थे, सोचो आप लोग सब, आप लोग क्लास 8 या 7 में कैसे दिखते होंगे? कैसे ना? बट अभी सोचो आप लोग कितना स्मार्ट हो गए, आप लोग का ड्रेसिंग सेंस बदल गया, सब कुछ बदल गया। व्हाई? ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन, राइट? So training and development is when any employee wants to develop themselves or will train themselves in such a manner so that they can upgrade themselves to a better position. So for example, आप लोग सब आज घर जाके एक काम करोगे, आलिया भट्ट का जो पहला आप लोग स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर देखे होंगे आलिया भट्ट का, वहां पे जाके आलिया भट्ट का प्लीज फेस एक बार देखना, कैसे दिखती थी वो। और अभी आप लोग ब्रह्मास्त्र आ रहा है ना, उसमें आलिया भट्ट का फेस देखना जाके, कैसा हो गया? क्यों? ग्रूमिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, दैट इज व्हाट वी मीन बाय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब हर एम्प्लॉय को तो हम आलिया भट्ट बना नहीं सकते, तो क्या करेंगे? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अपने जो पोजीशन है उस पोजीशन पे कोई बेटर पोजीशन पे जाने के लिए जब ट्रेन करते हैं, अपग्रेड करते, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो देयर इज सम नीड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्यों ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना है? सपोजिटली आई एम वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। As I'm working in the organization for a very long period of time, I'll be stagnant in the organization. मेरे को कुछ डेवलपमेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, अरे ये लोग तो मेरे को रखेंगे, कुछ भी कर लो, राइट है ना? सपोजिटली हमको खुद को ट्रेन करना पड़ेगा, बेटर करना पड़ेगा ना अपने आप को। सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टॉक्स अबाउट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टॉक्स अबाउट when we are trying to upgrade any employees from their original position to their future position in a better
manner or upgrading employees in a better manner. First point. Number 2 comes, we know we are all living in a complex environment. Supposedly आज कुछ सीखे हैं, कल कुछ और सीखना पड़ेगा. 10 साल पहले कभी सोचे थे कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का कोई चीज आएगा, सब कोई हम लोग को ट्रैक करेगा? नहीं सोचे थे ना. क्यों हो रहा है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए. सो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पे जब अपने आप को डील करना है, जब अपने आप को अपग्रेड करना है, दैट इज द सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग. नंबर 3 कम्स द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग नाउअडेज. यू नेम अ प्रोडक्ट एंड इट इज चेंजिंग. एंड्रॉइड हर साल, हर 2 साल अपग्रेड कर रहा है. iOS हर साल, हर 2 साल अपग्रेड कर रहा है. अब सपोजिटली अब आपके कोई ग्रैंड पेरेंट्स को आप एक न्यू वाला कुछ एंड्रॉइड दे दिए, बेचारा उनको प्रॉब्लम होगा ना जब तक आप उनको सिखाओगे नहीं, ट्रेन नहीं करोगे. सो हम लोग को भी वैसे ट्रेन करना पड़ेगा. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पे कहीं पे भी when the products and the services are coming new, it's offered in a new manner, we have to also adapt ourselves in the new manner. That is the third importance of training, when we the employees have to upgrade ourselves in absolutely new manner to be at par with the products and services. Now training is beneficial from 2 point of view. From we, like supposedly I am an employee, from my point of view training is important. From organization point of view also training is important. Supposedly आप लोग चले TCS में काम करने, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पे काम करने, एक ट्रेनिंग पीरियड होता है 2 महीने का, 3 महीने का. क्या होता है वहां पे? हम लोग सीखते हैं कैसे काम करना है. 11-12 पास आउट, बीकॉम ग्रेजुएट्स चले काम करने, कुछ नहीं पता है, बुकिश नॉलेज पता है बस. अब वो बुकिश नॉलेज को कन्वर्ट करना है अपना काम में, एक्चुअल वर्ल्ड में, है ना. उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेनिंग. ना उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी इन दिस ट्रेनिंग प्रोसेस, सो दे हैव टू गेन सम बेनिफिट ना. कोई ऐसे मजाक के लिए तो ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए ऐसे इतना कुछ मेहरबानी नहीं करे, आपको पसंद भी नहीं करते इतना कुछ करने के लिए. So benefit to the organization comes, number 1, training is beneficial because it is much better than hit and run method or hit and trial method. उसको क्या बोलते हैं? इसको ऑर्गेनाइजेशन पे ला दिए, ट्राई कर लिए, चलो काम चल गया, अच्छा बात है, नहीं काम चला छोड़ो. नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के पास. सो हिट एंड ट्रायल मेथड से ट्रेनिंग मेथड बेटर है. ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट कर लिए, अब ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि ये मेरे लिए एप्ट है, इसको ट्रेन करो, इसको सिखाओ अच्छा से कैसे काम करना है, देन तुम्हारा आउटपुट अच्छा होगा. फर्स्ट पॉइंट. नंबर 2 point comes with the enhancing productivity in terms of quality and quantity. Supposedly if I'm talking about training will always enhance our productivity and quality. Supposedly अगर तुम लोग कोई फॉर एग्जाम्पल कहीं पे कुछ कोर्स किए आफ्टर क्लास 12, ओके, 12 के पहले उस चीज के बारे में एकदम नहीं पता था, ड्राइविंग कोर्स सपोज समझ लो, तुम्हारे पापा मम्मी कोई भी तुमको ड्राइविंग सिखाए, इतना दिन घर पे सिखा रहे थे, अब तुम एक कोर्स कर लिए, कोर्स करने के बाद परफेक्ट सीखोगे ना, क्वालिटी बेटर हो जाएगा, तुम कॉन्फिडेंट बन जाओगे. दैट इज बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन. पापा मम्मी का भी खुश हो जाएंगे कि नहीं मेरे को इसको रोज स्कूल नहीं छोड़ना पड़ेगा, नहीं मेरे को इसको रोज कॉलेज नहीं छोड़ना पड़ेगा, ये खुद ही चला जाएगा गाड़ी चला के. नंबर 2. नंबर 3 comes, training will equip the future managers, you know, who can deal with emergencies. Supposedly ट्रेनिंग तुमको ऐसे डेवलप करते हैं कि तुम अपना फ्यूचर इमरजेंसी में कुछ परफेक्ट डिसीजन लोगे. अभी तुम लोग सब बच्चे हो, अभी तुमको हम कहीं पे फेंक दिया, बोले तुम डिसीजन लो भैया, कर सकते हो क्या? एक्सपीरियंस तो नहीं है, ट्रेनिंग भी नहीं है, बट मेरे को अगर तुम कोई भी प्रॉब्लम में डाल दोगे, मैं कोशिश करूंगी उससे बाहर निकलने का, थोड़ा बुद्धि लगा के.
दैट इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग इज. इट विल डेवलप द फ्यूचर मैनेजर्स सो दे बिकम बेटर. अगर ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे कुएं में कभी गिर गया तो ये जो मैनेजर्स है, जहां पे जिसको इतना पैसा देके ये लोग ट्रेन किए थे, वो ऑर्गेनाइजेशन को कुआं से उठा सकता है. ओके, दैट इज द थर्ड इंपॉर्टेंस. Number 4 comes training will increase the morality of the employees. जब तुम लोग trained employees होंगे ना, तब तुम्हारा मोरल बिल्डअप हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा. मोरल मतलब कॉन्फिडेंस, हम ये कर सकते हैं, देखो तो देखो, चैलेंज एक्सेप्टेड, ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा. सपोजिटली तुमको कहीं पे हम न्यू जगह पे छोड़ दिए, तुम लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस कम रहेगा, किसी भी बच्चे का कॉन्फिडेंस कम रहेगा. लेकिन अगर सपोजिटली तुमको हम ट्रेन करके बता दिए क्या करना पड़ेगा, तब तुम कॉन्फिडेंट रहोगे. सो ट्रेनिंग विल इंक्रीज द मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज एंड विल बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस. एनीथिंग एवरीथिंग दे कैन जस्ट डू इट इजीली. That is what the importance of training, that is how training is beneficial from the organization point of view. Now training is beneficial from the point of view of employees. Number 1, ये फटाफट करेंगे. Number 1, how is it beneficial? It is improving your own skill and knowledge. So if you are a trained employee, of course your skill is building up. You know what to do, how to do, when to do. It is building up your knowledge also. Number 1. Number 2, it will increase your productivity. फटाफट तुम वो काम कर दोगे जो तुम कभी सोचे भी नहीं हो, वो फटाफट कर दोगे. Number 3, training will make you handle machine work more efficiently. फटाफट सब कुछ कर दोगे. सपोजिटली कोई सॉफ्टवेयर है, मेरे को 50% आता है बुकिश नॉलेज से, बाकी 50% जब करेंगे फटाफट तब ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं. That is how I'm going to do it. Number 3. Number 4, training will help us to earn more because we are developing ourselves better than any random XYZ. कोई भी आदमी जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहा है, अगर मैं ट्रेन्ड एम्प्लॉय हूँ, मैं उनसे ज्यादा बहुत बेटर करूंगी काम. That is how the training is beneficial to me from my point of view. That is, training gives benefit to employees as well. So next that we come to the difference between training and development. So ये training and development क्या है? Training, supposedly आज हम लोग गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो क्यों सीख रहे हैं? गाड़ी चलाने के लिए. To improve the current job performance, I am training myself, right? गाड़ी चलाना सीखने के लिए हम लोग ट्रेन कर रहे हैं अपने आप को. डेवलपमेंट क्या है? ओवरऑल डेवलपमेंट. मेरे को एक स्मार्ट जस्ट गो टू वुमन बनना है, मेरे को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंग्लिश स्पीकिंग जानना है, मेरे को गाड़ी चलाना जानना है, मेरे को ऑटोमेटिक फोन ये वो सब कुछ अपडेटेड रखना है. दैट इज डेवलपमेंट. नॉट इन अ पर्टिकुलर फील्ड. आई हैव टू बी गुड इन इंग्लिश, आई हैव टू बी गुड इन ड्राइविंग, आई हैव टू बी गुड इन हैंडलिंग एवरी एंड एनी सिचुएशन. दैट इज डेवलपमेंट. Overall development or personal development of an employee. The second thing that we come to, training is only for an operative level. ये काम के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये काम खत्म, ट्रेनिंग खत्म. डेवलपमेंट क्या है? मैनेजरियल लेवल के लिए कोई भी काम बोल दो, डेवलपमेंट. आई एम सेल्फ डेवलप. कोई भी काम बोल दो, कोई भी हैंडल दे दो, मैं तो भैया फटाक से कर दूंगी. That is what development is. That is what we mean by the difference of training and development. ये हम लोग का usually 2 marks का question आता है, difference between training and development. बस यही 2 point आप लोग को याद रखना है. The next that we come to the training methods. This is extremely important from an exam point of view. ये examiner का काफी favorite question है, तो आप लोग ये थोड़ा दिमाग में रट लो. दोनों टाइप का मेरा ट्रेनिंग मेथड्स है. एक है ऑन द जॉब मेथड्स
मतलब जो मेथड हम लोग ऑर्गेनाइजेशन पे करते वक्त सीखेंगे, जो काम करते करते सीख रहे हैं, while doing the work when I am learning, that is my on the job method. Off the job method, off the job method क्या है? घर पे बैठ के या ऑर्गेनाइजेशन पे बैठ के नहीं, काम करते करते नहीं, उसके पहले जब कुछ सीख रहे, while not doing the work or somewhere else when I'm sitting, observing, learning the work, that is what we mean by off the job method. This is the two methods of training, on the job method and off the job method. Let's go to the next slide where we learn this in details. So the first type that we will talk is the on the job training method. जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, हम उसी को यहाँ पे कवर करेंगे। सारा चीज पढ़ने का फिलहाल दरकार नहीं है, बुक से एक बार देख सकते हो, बट यही 3 काफी है। नंबर 1 दैट वी हैव इज अप्रेंटिसशिप मेथड। ये क्या है? ऑन द जॉब मेथड। While I am in the organization, I am trying to learn as well as work. Learn as well as work. So apprenticeship method में क्या है? कोई मेरा बॉस है, मेरे को वो सिखा रहा है, मेरे को वो बता दिया कि तुमको ये काम करना है, तुमको वो काम करना है। सो ही इज ट्रेनिंग मी, ही इज पुटिंग मी थ्रू द ट्रेनिंग प्रोसेस, अंडर द ट्रेनिंग प्रोसेस, एंड ही इज मेकिंग मी डू द वर्क। सो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का एक एग्जाम्पल देते हैं, चलिए। सो सपोजिटली हम कोई ऑर्गेनाइजेशन पे गए हैं ऑडिट का काम करने, ऑडिट का काम कर रहे हैं। फर्स्ट डे तो इंसान तो ऑडिट का काम नहीं जान सकता है, तो मेरा जो हेड है वो मेरे को सिखा रहा है कि ऐसे करो, ऐसे करो, यहाँ पे एंटर दबाओ, यहाँ पे करो, इसको टैक्स रिटर्न करो। तो वो सिखा रहा है और वो ऑडिट फाइलिंग भी सिखा रहा है, दोनों चीज साथ साथ कर रहा है। दैट इज व्हाट माय अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मेथड इज। नंबर 1। नंबर 2 दैट वी हैव इज अ कोचिंग मेथड। कोच, फुटबॉल का कोच, क्रिकेट का कोच क्या करता है? खेलता है, सिखाता है, खेलता है। ऐसे कोच तो बैठ के बोलता नहीं, ऐ तुम फुटबॉल खेलो, तुम राइट लेग से लेफ्ट लेग से खेलो, नहीं, खेलते खेलते सिखाता है ना। कोचिंग भी वैसा मेथड है। कोचिंग मेथड में क्या करते हैं? The supervisor will state you the goals, the objectives, everything, and then they will tell you, please follow this pathway to complete the work. That is what my coaching method is. Number 3 that we have is a internship method. So कोई भी organization अभी चाहता है ना कि थोड़ा इंटर्न लोग काम सीख के आए। तुम लोग को अभी पता ही होगा, इंटर्नशिप बहुत कॉमन एक प्रोसेस है। ये इंटर्नशिप एक जस्ट फ्लैश आउट आइडियाज है, रियल वर्ल्ड कैसा है। अभी हर जगह तुम naukri.com देखो, इंटर्नशाला देखो, बहुत इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिलेगा आफ्टर क्लास 12। कर भी लेना थोड़ा बहुत, क्यों? अपना सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। इंटर्नशिप कर रहे हो मतलब तुमको रियल वर्ल्ड के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता है, तुमको पता है कि रियल वर्ल्ड कैसे ऑपरेट होता है। सो दिस इज व्हेन वी मीन बाय द इंटर्नशिप मेथड, वेयर यू लर्न द वर्ल्ड before you actually do it. Before you step into the real world, you have learned the actual world. That is the third method of on the job training. Now let's come to the off the job training method. Supposedly जैसे हम लोग बोले हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पे आप जाओगे तो एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, 3 months 2 months। अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है उसमें आपको पैसे देंगे, अगर ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा कंजूस है पैसे नहीं देते, ठीक है। तो ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड क्या है? कोई अलग एक इंस्टीट्यूट होगा, कोई अलग एक जगह होगा, या तो फिर ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस पे एक अलग फ्लोर होगा जहां पे आप लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। क्या ट्रेनिंग दिया जाता है, कैसे ट्रेनिंग दिया जाता है? फर्स्ट ट्रेनिंग है क्लासरूम मेथड। क्लासरूम में बैठ के क्लास करते हो ना आप लोग, हमको पता है ये कोविड के चक्कर में बहुत पहले क्लासरूम में क्लास किए थे, अभी नहीं करते हो, बट फिर भी सपोजिटली क्लासरूम मेथड पे हम लोग क्या करते हैं? कोई टीचर बोलते हैं, आप लोग सुनते हो। Similarly, when we go for training from an organization perspective,
Someone will explain us about the organization. Someone will tell us about the do's and do nots of the organization. How to do certain work in an organization. That is classroom method. When a supervisor is going to give you an idea like a lecture session to enhance the employees' knowledge, because employees are not knowledgeable, to enhance the employees' knowledge और एम्प्लॉय को सिखाने के लिए, जनाने के लिए, पता करने के लिए, दैट इज व्हाट वी मीन बाय क्लासरूम मेथड. नंबर 2 दैट वी हैव इज केस स्टडी मेथड. केस स्टडी मेथड बहुत कॉमन एक मेथड है जो हर ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करने का कोशिश करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल केस स्टडी मेथड पे हम लोग क्या करते हैं, एक केस दिया जाता है, रियल लाइफ केस. सपोजिटली टाटा ने ये किया था, टाटा ऑर्गेनाइजेशन पे ये हुआ था. रियल लाइफ केस, 2 एम्प्लॉय झगड़ा कर रहे थे, 2 एम्प्लॉय मारपीट कर रहे थे, 2 एम्प्लॉय किसी के अगेंस्ट किसी ने फाइल शूट कर दिया, कुछ भी एक रियल लाइफ केस दिया जाएगा. आपको दे दिया जाएगा वो केस, अब आप सॉल्व करो वो केस को. दैट इज केस स्टडी मेथड. अ रियल लाइफ सिचुएशन विल बी गिवन टू यू. You have to find a solution to the real life case. That is what we mean by case study method. Number 2. The next that we come to the vestibule training method. This is the last part of staffing that we have come to. इसके बाद staffing chapter खत्म. Vestibule training method पे हम लोग क्या करते हैं? वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग मेथड पे हम लोग अपना जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है या ऑफिस जो एनवायरनमेंट है उसको क्रिएट करते हैं. सपोजिटली ऑफिस एनवायरनमेंट में हम लोग क्या करते हैं, ऑफिस एनवायरनमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं. ऑफिस एनवायरनमेंट के लिए हम लोग सारा उसको मटेरियल दे दिए, प्रॉब्लम दे दिए, कंप्यूटर दे दिए, सब कुछ दे दिए. अब उसको बोल रहे एम्प्लॉयज को ग्रुप बना दिए, अब करो तुम लोग, झगड़ा करो, मारपीट करो, कुछ भी करो, सॉल्यूशन दो मेरे को. दैट इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग मेथड. व्हेन एन एक्चुअल जॉब एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ ऑल द थिंग्स दैट इज बीइंग गिवन टू एम्प्लॉयज. नाउ एम्प्लॉयज विल फील द प्रेशर. Employees will feel like they are actually doing the work, but this is the part of the training, one of the very important method of training where we get to learn ourselves but within the training premises. That is vestibule training method. The next and the last training method of the job training we come to is the program instruction method. Program instruction method पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड पे हम लोग एम्प्लॉयज को स्किल्स, नॉलेज, ये सब के बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं. सपोजिटली तुम भैया इस बैकग्राउंड से हो, तुमको यही काम देंगे, तुम भैया उस बैकग्राउंड से हो, तुमको वही काम देंगे. सो एम्प्लॉयज को हम लोग पहले कोई सिचुएशन को हम लोग प्री अरेंज करके रखते हैं, फिर जो एम्प्लॉय जिसमें बेटर है, जिसका जो फोटे है, जिसका जो बेनिफिशियल एरिया है, उसी को वही काम देते हैं. दैट इज प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड. बेसिकली द एम्प्लॉयज आर गिवन देयर वर्क एज par with their comfort zone. That is what we mean by program instruction method. That is it for the of the job training. With this we come to the end of the staffing chapter. बस 2 ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म कर दिए. थैंक मी लेटर. हाँ, बट पहले स्विच ऑफ करने के पहले प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. फ्रेंड लोग को भी बताना, इतना जल्दी जो स्टाफिंग सीख गए, मेरे को थैंक बाद में करना. प्लीज कमेंट और सब्सक्राइब कर देना. और यही चैप्टर में हम पूरा ये 2 वीडियो में सब कुछ कवर कर दिए. इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है. थोड़ा बुक भी देख लेना भैया, खुश हो जाएंगे जो एग्जामिनर वाले हैं. बट फिर भी इफ यू रिवाइज दिस चैप्टर नाउ एंड बिफोर द एग्जाम, दैट इज इट. सो प्लीज वॉच आउट. थैंक यू फॉर वॉचिंग लिमिटलेस ब्रेन्स. दिस इज मी शोलिना साइनिंग ऑफ. थैंक यू.